What if I told you the real battle in UPSC IAS examination is not just cracking the examination? It's about choosing the right department which fits your career. And जब बात आती है prestige, power and growth की, तो दो departments सामने निकल के आते हैं, IRMS and CES roles. So which one should you choose? Stay with me because by the end of this video, you will get to know which department suits you in terms of career growth, salary and future growth aspects. Hello everyone, welcome back to this channel. I am Manas De, a civil engineer and IAS officer, and in this channel we discuss careers of core sector engineers. अब वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हो या कोर सेक्टर में प्राइवेट जॉब ढूंढने वाले एस्पिरेंट्स हो, सभी लोगों के लिए यहाँ पे आपको करियर से रिलेटेड लेटेस्ट टॉपिक्स एंड लेटेस्ट डिस्कशंस मिलेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले IRMS है क्या। देखो, IRMS यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक कैडर है जो कि बनाया गया है इंडियन रेलवेज के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट को मर्ज करके। IRMS में रिक्रूट होने वाले इंजीनियर्स हैंडल करते हैं ट्रैक्स, ब्रिजेस, स्टेशन, सिग्नलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स ऑफ इंडिया। यहाँ इंजीनियर्स बेसिकली दो तरह के काम करती हैं, एक ट्रैक मेंटेनेंस एंड अनदर ट्रैक कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स उसके साथ allied activities भी आ जाते हैं जैसे कि construction and maintenance of stations, housing colonies, station yards, etc. etc. So it's not just engineering; it is administration plus engineering that you get in Indian Railways. And since Indian Railways को इंडिया का lifeline बोला जाता है, with India growing, there is immense scope of growth in Indian Railways. And because Indian Railways is spread throughout the country, your posting can happen anywhere across the country. But here's the charm. Railways equals scale. The projects are massive, the budgets are huge and exposure unmatched. In terms of power and influence, IRMS is unmatched as compared to any other services that you get through engineering services examination. But wait, is that really that good? We won't know until and unless we discuss CES roads. CES रोड कैडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर में आती है। एंड यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेस एंड नेशनल हाईवेज बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, दिस सेक्टर विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नाउ वी ऑल नो द कंस्ट्रक्शन फी ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया एंड हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडर्न इंडिया. And if you want to be part of this transformation, this department is for you. Officers here plan, design and monitor infrastructure projects that transform the landscape of India's terrain. So, unlike railways, here you won't be managing a lot of trains and operations and administration. Rather, your work here will be more technical and more or less civil engineering related. So, you will be working in technical field in its truest forms: roads, highways, bridges and expressways. Okay, now that we know the brief about both the departments, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें ranks क्या चाहिए होगा। जैसा कि मैंने बताया कि Indian Railways by far is the best service that you can get through engineering services, and that's why यहाँ पहुँचने के लिए you need topmost rank. Now, on an average, Indian Railways gets 150 to 200 vacancies for all of the branches, and especially civil engineers के लिए 50 to 100 vacancies होती हैं. So, if you want railways, you need to ensure that you secure top 50 rank so that you enter Indian Railways. CES roads, on the other hand, second या third priority होती है लोगों की, because लोग इसके बारे में उतना familiar नहीं है. But मेरे हिसाब से this is a very very rapidly growing department, and in years to come, this department will become very very important for our nation. And for the reasons I will speak later part of this video, I think this department should be second or third priority for you, and in some cases it should be first priority for you. Now ये एक comparatively छोटी department है and cadre strength छोटा है, and यहाँ पे on an average 20 to 30 vacancies निकलती हैं. So अगर आप top 100 में आ जाते हो, then I think you will be securing your position in CES roads. I have a sore throat, so pardon me for the bad voice that is coming out. I'll try to be as clear as possible. Now jumping to next part of the comparison, that is ट्रेनिंग। इंडियन रेलवेज के ट्रेनिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक CPWD वर्सेस इंडियन रेलवेज के कंपैरिजन में बता रखा है। यू कैन चेक द वीडियो हियर, लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ब्रीफ में ये बता दूं कि ट्रेनिंग डेज विल बी द गोल्डन डेज फॉर यू, चाहे वो सालों की मेहनत के बाद एक रिलैक्स्ड टेन्योर काटना हो या फर्दर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आपको टाइम चाहिए हो, दोनों ही चीजें आपको ट्रेनिंग डेज में मिल जाएंगी। ओवरऑल इन ट्रेनिंग यू गेट ट्रैवल, नेटवर्किंग एंड बिग एक्सपोजर टू प्रोजेक्ट्स जो कि करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स में चल रहे होते हैं। Therefore, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपको फुल सैलरी के साथ एक अच्छी खासी पैकेज्ड वेकेशन मिल जाती है, जहां पे आप इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को घूम लेते हो। समटाइम्स यू गेट एन अब्रॉड ट्रैवल ऑल्सो,
on study tours, and इसके अलावा you get to meet the top bosses of the organization जो कि आपको रूबरू कराते हैं वहाँ की organization structure के बारे में, वहाँ के working के बारे में, and वहाँ पे चल रहे latest projects के बारे में. Training, accommodation and facilities के बारे में अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँ तो video is going to be very lengthy. Let me know in the comment box if you want a separate video on training in CES roads and Indian Railways. I'll make a separate video on that. बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के लिए जहां पे हम डिस्कस करेंगे पोस्टिंग, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क कल्चर के बारे में. Now here's where things get really interesting in both the departments. सबसे पहले जानते हैं IRMS के बारे में. देखो IRMS एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है एंड काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट्स व्हाई यू कैन गेट पोस्टिंग इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग विल बी अ रिमोट पोस्टिंग. अगर आपको एक रिमोट लोकेशन पोस्टिंग चाहिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और up in the mountains, then you can easily get that in Indian Railways. Other than that, postings are a matter of luck and vacancy. Railways mein, you get the feel of power right from the first posting. In the first posting itself, you will be managing hundreds of employees who will be working under you. But, with great power comes great responsibilities, and with great responsibilities comes hell lot of work. So, inspections will be non-stop and phone will be continuously buzzing in your pocket. Power to feel hoga, but you will be equally stressed with all these kind of problems. Now, one of the reason why railways work is so hectic is because railways एक बहुत ही critical engine है and यहाँ पे आपको of defect से deal करना पड़ता है. Even a 5 of defect can lead to derailment in the railways, and small or big, all kinds of problems will lead to huge amount of public exposure, and that's why ये ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा हेक्टिक है एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वर्क इज ऑल यू विल बी हैविंग इन योर लाइफ एंड लिटरली यू विल बी मैरिड टू वर्क. एंड अगर आपकी कोई वाइफ है देन शी विल लिटरली फील लाइक शी इज द सौतन ऑफ योर वर्क. रेलवेज के अगर वर्क कल्चर की बात करें तो इट्स लॉट बॉसी वर्क कल्चर. बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत पावरफुल फील होगा बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल विल रिपोर्ट टू यू एंड मेक यू फील पावरफुल. बट एट द सेम टाइम आपके बॉसेस की गालियां आपको पैथेटिक भी फील कराएंगी. Unfortunately, Indian Railways still relies on centuries-old methods of administration and working, and because of that, there are unnecessarily huge amount of workloads जो कि आपके पास आते रहेंगे. That's a sad work culture, and you have to accept it if you are in Indian Railways. On the other hand, CS roads में अगर हम posting की बात करते हैं, then you will get posting mostly in capital cities और tier 2 cities maximum. Basically, CS roads में आपके 3 तरह की postings होती हैं. फर्स्ट इज हेडक्वार्टर पोस्टिंग जहां आप मोस्टली आप प्लानिंग का काम करते हो. सेकेंड इज रीजनल यूनिट्स जो मोस्टली स्टेट कैपिटल्स या बहुत बड़े सिटीज में होते हैं. एंड थर्ड इज डेपुटेशन टू रोड PSUs लाइक NHAI, NHIDCL एंड NH यूनिट्स ऑफ स्टेट PWD, BRO etc. सो इस कैडर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनरी को टेस्ट करने का. So you get a feel of both the departments. All in all, you get a decent work life, but the perks and allowances are much less as compared to railways. जहाँ Indian Railways में गाड़ियाँ मिलती हैं, attendants मिल जाते हैं, यहाँ पे in CS roads you won't get any such thing. Rather, अगर आपकी posting headquarters में हो जाती है, you won't even get a chamber. You will get a cubicle at your first posting, and there won't be any separate attendant or peon to attend you. But yes, on the contrary, workload is not that much, and you get to enjoy the city life because आपको बड़े cities में ही posting मिलती है. However, अगर आपकी पोस्टिंग PSUs में हो जाती है जैसे कि NHAI, NHIDCL etc. तो यहाँ पे वर्क इज प्रोजेक्ट डिपेंडेंट एंड डेडलाइंस मैटर करते हैं. एंड यहाँ पे 24/7 तो काम नहीं करना पड़ेगा, बट यस देयर विल बी डेडलाइंस एंड देयर विल बी प्रेशर ऑन यू. वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटिवली फ्रीयर एंड रिलेटिवली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. आप ओपनली अपने बॉसेस के साथ बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड कैडर बहुत छोटा है इसीलिए आप अगर हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हो तो मेनी टाइम्स जॉइंट सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज के साथ भी आपके इंटरेक्शंस बहुत कम लेवल पे ही स्टार्ट हो जाते हैं. और इवन अगर आपको एक प्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए एंड इंजीनियर्ड फोकस वर्क चाहिए, CS रोड्स इज बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर यू. ओके, पोस्टिंग, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तो हमने बात कर ली, बट लेट अस अंडरस्टैंड फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क हमें सैलरीज कितनी मिलती हैं. सैलरीज की अगर हम बात करें तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट इक्वल सैलरीज मिलती है.
यहाँ आप दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपको बेसिक HRA एंड DA मिलता है। डिटेल्स ऑफ द सैलरीज इन इस कैडर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक द वीडियो हियर, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट द वीडियो। इन शॉर्ट, यू आर लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट सेफ, सिक्योर एंड रिस्पेक्टेबल पैकेजेस दैट यू गेट इन इंडिया। एट ITRE you get about 80,000 to 1 lakh rupees of salary, जो कि ऑन एन एवरेज 7% पर ईयर के इंक्रीमेंट से बढ़ती जाती है। कमिंग टू फैसिलिटीज, रेलवेज बीट्स फैसिलिटीज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आपको बहुत बड़े घर मिलेंगे, होम्स जो कि आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। रेलवेज में फर्स्ट पोस्टिंग में ही आपको ह्यूज बंगलो विद ह्यूज लॉन्स मिल जाते हैं, एंड अगर आप छोटे जगह पे पोस्टेड हो तो अच्छे खासे अटेंडेंस भी मिल जाएंगे जो कि आपके सारे डे टू डे नीड्स का ख्याल रखेंगे। ऑफिसेस आपको काफी बड़े मिलते हैं एंड देयर विल बी डेडिकेटेड प्यून फॉर यू, डेडिकेटेड अटेंडेंट फॉर यू, एंड आपसे मिलने के लिए भी एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। एंड दीज फैसिलिटीज ओनली इंक्रीज एज यू ग्रो अप इन योर करियर स्केल। आई मीन एट चीफ इंजीनियर लेवल आपको एक अच्छे खासे बड़े सिटी में एक अच्छा खासा बड़ा मकान मिलता है, दैट एसेट इज वर्थ क्रोर्स, एंड वो एक कॉमन आदमी सोच भी नहीं सकता है। इस तरह की फैसिलिटीज आपको हाईएस्ट स्केल पे मिल जाते हैं इंडियन रेलवेज में। वही CES रोड्स में आप बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर फैसिलिटीज। CES रोड्स में आपको इस तरह से कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं। आपको GPRA में एक टाइप 4 क्वार्टर मिलता है, अगर GPRA अवेलेबल है तो। अगर GPRA आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है then you only get HRA, there is no further allowances that is given to you। and ये क्वार्टर्स भी अपग्रेड होते होते मैक्सिमम टाइप 5 टाइप 6 क्वार्टर्स तक जाते हैं जैसे जैसे आप अप स्केल जाते हो अपने करियर में। एंड इवन टाइप 5 टाइप 6 क्वार्टर्स भी जो होते हैं they are not that grand as compared to that of railways। इंस्पेक्शन व्हीकल भी आपको तभी मिलेगा जब आप फील्ड में पोस्टेड होते हो टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन द स्टेट। अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो there is no such provision of inspection vehicle, you only get TA, that is transport allowance of 70-200 rupees per month। ऑफिसेस काफी छोटे होते हैं, कई सारे सिटीज में जो ये नॉर्थ के ऑफिसेस होते हैं आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, एंड देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ्स, एंड बेसिकली देयर इज नॉट मच पब्लिक इंटरेक्शन जो कि इस डिपार्टमेंट में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली you don't get much fame in this department। and अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो तो आपको ओनली एक क्यूबिकल मिलेगा, नो अटेंडेंट, नो प्यूर, नो सेपरेट कमरा। ऑलराइट, फैसिलिटी वाइज वी हैव अंडरस्टूड दैट इंडियन रेलवेज बीट CES रोड्स बाय ह्यूज मार्जिन, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि आपके प्रमोशंस कैसे होते हैं इन ईच डिपार्टमेंट। IRMS में जो फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिलती है दैट इज AEN एंड दैट इज JTS, जूनियर टाइम स्केल। AEN में 4 years सर्व करने के बाद यू गेट प्रमोटेड टू DEN, दैट इज डिविजनल इंजीनियर, एंड दिस इज सीनियर टाइम स्केल, STS ग्रेड में आ जाते हो आप। इसके बाद फर्दर 5 years यानी कि टोटल 9 years ऑफ सर्विस के बाद आप बन जाते हो सीनियर DEN, एंड सीनियर DEN इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। सीनियर DEN में फर्दर 4 years काम करने के बाद यानी कि 13 years ऑफ सर्विसेज के बाद आप बन जाते हो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज। देन डेप्यूटी चीफ इंजीनियर विल बी फॉर 5 years ऑफ योर सर्विस, एंड आफ्टर 18 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ टोटल सर्विस यू इंटर इनटू चीफ इंजीनियर रैंक, एंड दैट इज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। यहीं पे DRM की पोस्टिंग भी होती है। सो इन केस यू आर इमेजिनिंग टू बिकम DRM, देन आई थिंक 18 years विल बी द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन इंडियन रेलवेज। देन चीफ इंजीनियर में 3 से 4 साल काम करने के बाद यू गेट प्रमोटेड टू प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, जो कि 21 से 22 साल के सर्विस के बाद आप बन जाते हो। फर्दर 24 to 25 years के टोटल सर्विस के बाद आप GM रैंक में पहुंच जाते हो, एंड GM रैंक इज HAG प्लस स्केल। जिनको स्केल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है दे कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस स्केल, बट on an average I will tell you that this is quite senior scale, and ये स्केल पहुंचने के लिए most of the departments में आपको almost entire service लग जाती है। And finally after 28 to 30 years of service you get entry into railway board membership। Now railway board member is pay level 17 scale, and this is the maximum scale जो कि आपको engineering cadre में मिल सकता है, and that's why Indian Railways beats all other departments in terms of promotions as well। After understanding Indian Railways promotion ladder, let us now understand the promotion ladder of CES roads। CES roads में आप फर्स्ट पोस्टिंग में घुसते हो एज AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यहाँ पे आप 4 से 5 साल के सर्विस के बाद आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि लेवल 11 की पोस्ट होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आप जंप करते हो 2 स्केल्स, लेवल 11 एज वेल एज लेवल 12। लेवल 12 इज NFSG पोस्ट। NFSG स्टैंड फॉर नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड, यानी कि आपका स्केल तो अप हो जाएगा बट यू रिमेन एट सेम पोस्ट। सो ऑल इन ऑल लेवल 12 क्रॉस करते करते आपको लग जाते हैं 13 से 14 साल, एंड आफ्टर अबाउट 14 years यू एंटर इनटू स्केल 13, एंड दैट इज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर स्केल।
यहाँ पे आप SAG स्केल पहुंच जाते हो। नाउ SC पोस्ट इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। अ पॉइंट टू नोट इज दैट जहां आपको इंडियन रेलवेज में ये पोस्ट अबाउट 9 to 10 ईयर्स ऑफ सर्विस में ही मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये पोस्ट 13 to 15 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलता है एज चीफ इंजीनियर, दैट इज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, एंड यू गेट दिस आफ्टर अबाउट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके बाद ज्यादा कुछ कैडर में है नहीं, सो आप डायरेक्टली बनते हो ADG यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। इट टेक्स अबाउट 28 to 30 ईयर्स ऑफ योर सर्विस, एंड फाइनली आप एपेक्स स्केल में पहुंचते हो, दैट इज DG डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। लिए आपको 30 ईयर्स के अबाउट टाइम लग जाता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम स्केल जो आप पहुंच सकते हो दैट इज लेवल 16 ओनली। So Indian Railways beats CS roads in terms of promotion also. Now let us come to the next part of the video, that is growth and power in each department. Now देखो Indian Railways एक बहुत ही rapidly growing organization है because of high speed railways जो कि इंडिया में आने जा रही है। Already we are seeing वंदे भारत high speed rail corridor between Mumbai and Ahmedabad, एक high speed rail corridor और announce कर दिया गया है between Hyderabad and Chennai. So a lot of more such projects are going to come up in future. Also अगर आप मिडिल ईस्ट या हिमालय रीजन्स को ट्रैवल करते हो then you will get to see some of the humongous projects जो इंडियन रेलवेज अभी अंडरटेक कर रही है, and these projects are really massive in scale. So yes, there is a huge amount of growth opportunities in Indian Railways. Now coming to CS Roads has much better growth opportunity as compared to Indian Railways. Definitely Indian Railways expand कर रही है, but the way Indian expressways are expanding, the way our highways are expanding, and the way our lifeline is so much dependent on Indian highways, I think CS Roads has got much better opportunity in future to come. Especially Mission 2047 का जो प्रोजेक्ट आउटले है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लिया है, around 50 lakh crores of works have been announced, and here it produces a huge amount of opportunity. One such work जो कि आपको CS Roads के फ्यूचर को दिखा सकती है, that is Delhi Mumbai Expressway. Here you can see the type of futuristic expressway that India is planning right now, and such kind of expressways are going to come up in entire country. All in all, it all boils down to what is your take in career. अगर आप high speed rails में interested हो या new age technologies के साथ built हो रही जो स्टेशंस हैं इंडिया के उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको ट्रैक मेंटेनेंस, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ रेलवेज में इंटरेस्ट है, देन इंडियन रेलवेज इज बेस्ट फिट फॉर यू। ऑल्सो अगर आपको चाहते हैं एक बॉसी कल्चर की, पावरफुल फील होने की, या फिर अच्छी फैसिलिटीज लेने की, then Indian Railways may be the best fit for you. Another advantage that Indian Railways provides is a lot of management skills. So in case you are interested in managing things, then Indian Railways can be best fit for you. Now coming to CS Roads. अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो जो कि प्योर टेक्निकल वर्क करना चाहती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ देयर करियर, देन CS Roads may be the best fit for you. बिकॉज CS Roads में आपको प्योर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसके स्केल्स में काम करना इट इटसेल्फ इज अ चैलेंज। सो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आपको हाईवेज, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि एक्सप्रेसवेज या जियो टेक्सटाइल्स, इन सब टेक्नोलॉजीज से डील करना पसंद है, देन CS Roads will be the best fit for you. Both the departments are life changing. Both the departments will provide you opportunities that you will not get in private sector for a much better part of your career. Therefore, you should choose that ecosystem that suits your career goals. Because in the long term, अगर आपके career goals आपके ecosystem से align नहीं होंगे, you will be eventually bored and you won't be productive in your work. So in this video, I have briefly described about the work culture, about the perks and facilities, about the salaries, about the location of both the departments. And in almost all the phases, we have seen that Indian Railways beats CS Roads. But there are some aspects of CS Roads जो कि आपको चूज करने के लिए मजबूर करेगा CS Roads को over Indian Railways. I'll come with the facts and figures of the CS Roads. Let me know in the comment box if you are actually interested in part 2 of this video जहाँ पे मैं describe करूँगा why CS Roads can be a better choice than Indian Railways. I'll make a separate video on this if enough number of comments come on making part 2. That's it for today's video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. There is a lot of difficulty जिसके साथ मैं बात कर पा रहा हूँ इस वीडियो में. So in case you like the video, please hit that like button and subscribe करो इस चैनल को because your subscription channel likes are only motivating factors जो कि इस चैनल को रन करने में मुझे हेल्प कर रही है. शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कोर सेक्टर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं ताकि they get benefited with the matter and content that I bring in this channel. I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.